Hi everyone. Thank you for joining us today. We will now begin this session. So, as you all know, this is a free CCNA demo class conducted by NextGen IT Courses. Thank you all for participating. We ensure that you will benefit a lot from this class. Now, without wasting any more time, I would like to invite our faculty, Jay Kumar, to begin this demo lecture. Hello, Mr. Jay Kumar. Thank you for joining us today. Over to you now. Thank you. So, good evening, everyone. I'm Jay, and I'm going to give a demonstration about the CCNA. And along with that, I would like to give some introduction along which will give you an idea how your career is going to, the CCNA course and all these courses are going to give a shape to your career. So we are going to talk about CCNA. I believe that all of you must be aware what exactly CCNA stands for, right? It is a Cisco. You must be aware. Can anyone tell me what does the CCNA stands for? Yes. Can anyone tell me? Anyone of you? Okay. So CCNA stands for Cisco Certified Network Associates, right? That stands for CCNA, Cisco Certified Network Associate. So you must be aware with the company Cisco, right? And here you're going to learn about the networking. So I'm going to give a glimpse of what exactly networking is all about and how the networking is going to work, right? So let's say, I'm audible to all of you. Hello. Yes, sir. Your voice is audible. Okay, fine. Now, if we talk about the overview of the CCNA, so if I ask you what is this course and what is all about the CCNA, why we should use CCNA, what is the future of CCNA, especially in the age of AI, where does the chance of a CCNA or any network administrator or the cloud administrator stands, right? So I'll try to give a detail and authentic information to you guys. So first of all, I would like to introduce myself. As I told you, my name is Jay Kumar. I have experience of around 24, 25 years as a trainer only. I'm a Microsoft certified trainer and Cisco certified CCNA, CCNP. Along with that, I have Azure cloud certification. I have done AWS certification. Along with that, I am CES, that is Certified Ethical Hacker. And these are the certain trainings and VMware, and I'm certified RHEL also, that is your Red Hat Enterprise Linux. So these are certain certification and the courses which I'm teaching since 24 years. I've got experience of around 24 years as a trainer. I have worked in different countries, including UK, UAE, Singapore, and some part of Gulf country also, and in some part of Asia as well as India. So this is my introduction. Now, if we talk about who is this course for, now CCNA is anyone can do CCNA, right? If you want to learn for your future, if you want to make sure to create your career in the networking, so this is the great start. The CCNA is something which is the first step we can say. Or you just want, you're already working in some system administration, or you're already working as a professional, but you just want to get idea of how the network works and the backend how works, then also people are doing for CCNA. Even the managerial level people, they do the CCNA just to get the idea so that they can lead the team and they can uh, make sure that everything goes according to the proper uh, the proper standard, right? So CCNA is something, as I told you, it's a very, we can say the entry level course for the networking part, right? So if we talk about the roadmap, CCNA roadmap. So first thing,
we are going to talk about what are the different modules which you are going to learn in the CCNA. Okay, so first you should understand the basics, right? You should understand the basics, like it is what is networking, why we use the networking. You might be listening, you might be hearing this word many times. What is networking? Then your IP addresses. This is something very common. You might be, if you are from an engineering background, you might have done a little part in your college as well, right? Then you can, then the exam number for CCNA to get the certification is 200301. This is the certification. You have to clear this exam. So you get around you get networking fundamentals questions, network access questions, how the IP connectivity, security, automation, lot of things are there which you need to clear the exam. Very important is lab practice. You need to get a proper hands-on to understand the concept of CCNA. So there are many tools. So CCNA is basically, there are some devices, if you're aware, router and switches. These are the main device which your CCNA revolves around. Okay, so we need to understand the concept of router and switch in very detail, in more detail and in the depth. But router and switches are like when we are doing online class also, and even in offline class also, router and switches are not easily available in a classroom environment. Even the uh, in your production environment, if you're working, it's not easily accessible. It's always, like we can say, logged and not accessible to everyone. So we have got certain software which are simulators, right? So there are different simulators like Cisco Packet Tracer. So it's a software, simulator software, which will give the exactly same thing as you're working on a router or the switch. Similarly, you got another software known as GNS3, right? So these are the popular software which is used by all the professionals to do all the hands-on lab, even for the practice, for the testing, before you actually deploy or you actually make the changes in a real environment, right? So these are some practices are there. Now, if you talk about the exam is around 120 minutes. It's 2 hours, and approximately you get between 70 to 100 questions, which keeps on changing the types and format. In the questions, there are multiple choice question, MCQs, and there are lab simulations also. So you have to perform certain labs. Okay. So the cost for exam is approximately currently is 300 USD. And it's like, if you pass, you get the result immediately. It's online exams. There are centers where Pearson View or online proctored also. You can give it from home also, but it will be proctored. Now, when you talk about jobs, what kind of job you can get as a CCNA, as a Cisco Certified Network Associate? First of all, we need to understand the concept of a network administrator. Everyone nowadays, we talk about AI, right? Artificial intelligence, that this is taking jobs. Obviously, has changed the total scenario, especially in IT industry. But AI is not a direct threat. Now, when we talk about network engineers, when we talk about the system administrators, when we talk about the cyber security administrators, right? When Sir, we, sorry to interrupt, but can we keep it in like Hindi plus English for the audience? yeah, sure, Okay, thank you. right. So when we talk about the cloud administrator, so आप जब जॉब की बात करते हैं, एआई का सबको पता होगा, एवरीवन इज अवेयर ऑफ एआई, दैट एआई इज अ थ्रेट. लोग कहते हैं कि एआई की वजह से जॉब जा रहा है. ऑब्वियसली जॉब जा रहा है, बट ये जो फील्ड है, नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, ये जो फील्ड है, इस फील्ड को कहते हैं इंफ्रा, जो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करते हैं. दीज पीपल एज अ CCNA और अ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, साइबर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर या क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है, ये इंफ्रा के अंदर आता है, अंडर इंफ्रा. नाउ इंफ्रा जो होता है वो एआई से उतना इफेक्टेड नहीं होगा. उसके बहुत सारे रीजन है, जब आप नेटवर्क जाएंगे तब आपको पता चलेगा, अंडरस्टैंड. एआई जो टूल होता है, एआई का इम्पैक्ट क्या होगा? ऑलरेडी एआई के टूल्स है, दे आर वेरी स्मार्ट. ओके,
एआई के टूल आपको नेटवर्क को ट्रबल शूट कर सकते हैं, नेटवर्क के इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं, और आपका नेटवर्क को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप थ्रेट लेवल की बात करते हैं तो आप चेक कर सकते हैं किसी भी गूगल पे या इवन चैट जीपीटी पर कि थ्रेट लेवल आपके नेटवर्क जॉब या इंफ्रा जॉब को किस लेवल तक ले जा सकता है। तो ये काफी मीडियम, लो मीडियम है। क्यों? क्योंकि अगर मैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूं, यानी मैं अपने राउटर स्विच को कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, एआई मुझे सिर्फ रास्ता बता सकता है, वो मुझे सिर्फ दे सकता है ऑप्शंस, बट उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको जो डिजाइन करना है, उसके लिए आपको यू हैव टू हैव अ सीसीएनए पर्सन। वो एआई नहीं कर सकता है, वो रोबोट काम नहीं कर सकता है। उसमें आपको मैनुअली करना ही पड़ेगा, जो कॉन्फ़िगरेशन आपका वैलिडेट करेगा, जो चेक करेगा कि सब सही है, और कुछ और ट्रबल शूट जो करना है। ट्रबल शूट मतलब कि अगर आपका राउटर, फॉर एग्जांपल आपका स्विच राउटर बंद है, तो वो आपको एआई नहीं बता पाएगा कि राउटर क्यों नहीं काम कर रहा है, वो आपको खुद चेक करना पड़ेगा क्यों बंद है। तो ये सारे जो जॉब हैं इंफ्रा, हाँ, इट विल हैव इम्पैक्ट फ्रॉम एआई, इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जैसे कि आप सीसीएनए हैं, तो अभी जो काम आप से 40 मिनट्स में करते थे, तो अगर आप एआई को ठीक से टूल्स को यूज करते, यही काम आप 10 मिनट्स में कर पाएंगे। सो यहाँ पर ये फर्क पड़ेगा, ये डिफरेंस होगा कि आपको चीजें फास्ट होगी, बट अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप एआई को एज अ फ्रेंड टूल यूज करके आप अपने जॉब को और फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। तो ये इसके लिए कई लोग बोलते हैं, कई लोग का ये डर होता है कि कोई भी जॉब होगा अब तो एआई सबको, एआई इज गोइंग टू टेक। यस, एक एक्सटेंट तक ये बात सही है, बट इंफ्रा में ऐसा कोई भी डेंजर नहीं है। क्लाउड है, आपका नेटवर्क है, या साइबर सिक्योरिटी है, या फिर जो भी चीजें आप यहाँ पर हम जिनकी बात करें इंफ्रा के अंदर, इट इज वेरी सेफ, राइट। यहाँ पर आपको टूल्स का यूज करके आप उनके हेल्प से अपने नेटवर्क को और अपने सिस्टम को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और सिक्योर बना सकते हैं और फास्ट यूज कर सकते हैं। तो इनफैक्ट एआई इज अ फ्रेंडली टूल, फ्रेंड सपोर्ट है फॉर अ इंफ्रा इंजीनियर और इंफ्रा एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। सो यूजुअली वी कॉल इट एज अ इंफ्रा। सो आपको पता होगा इंफ्रा में आपके हार्डवेयर, आपका नेटवर्किंग, आपका क्लाउड और आपके सिक्योरिटी चीजें आ जाती है, सिक्योरिटी की चीजें आती है, वो इंफ्रा में होता है। डेवलपमेंट दूसरी चीज होती है। डेवलपमेंट ऑब्वियसली देयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम, ओके, वो आपके पास में डेवलपमेंट में आपको बहुत सारे इश्यूज आते हैं, वो चीज है। ओके, नाउ अगर आप अब हम इसके बाद देखेंगे करिकुलम क्या है, कोर्स क्या है, और जॉब ऑफर्स क्या है करेंटली मार्केट में। अगर आप जाएंगे तो आपको एज अ सीसीएनए जॉब स्कोप्स क्या क्या है, वो अगर आपको देखना है, हम उस पर बात करते हैं। ओके, ये नेक्स्ट जेन आईटी कोर्सेज है जो आपको सीसीएनए, सीसीएनपी, अज्योर, लिनक्स, पालो अल्टो, ये फायरवॉल्स हैं, वो आपको सिखाते हैं। और आप उसको मैंने जैसा बताया आपको कि ये इंडस्ट्री फोकस ट्रेनिंग है, यानी कि ये सिर्फ आपको सर्टिफिकेशन के लिए तैयार नहीं करती है, बल्कि आपको इंडस्ट्री रिलेटेड चीजें बताती हैं कि किस तरह से मार्केट में क्या हो रहा है, और आपको क्या सीखना है, और एग्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या आता है, आप उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो जब आप सर्टिफिकेशन करते हैं, जब आप इन कोर्स को करते हैं, देन यू विल रियलाइज कि ये आप एक्चुअली रियल इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं। जब आप जॉब पे जाएंगे या आपको इंटरव्यूज पे जाना है, तो आपको समझ में आएगा, यू विल अंडरस्टैंड दैट whatever you have understood is actually reflecting the industry। जो इंडस्ट्री में हो रहा है वही पढ़ा, ये आउटडेटेड आउटडेटेड चीजें नहीं होती हैं। आप सीसीएनए, सीसीएनपी, लिनक्स, एडब्ल्यूएस, ये सारी चीजें जैसा मैंने आपको बताया, ये इंफ्रा के साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीजें, और क्लाउड टेक्नोलॉजी, अजोर, एडब्ल्यूएस, सारी क्लाउड टेक्नोलॉजी है, फायरवॉल है, पालो पालो अल्टो, ये सारी चीजें आपको रियल लाइफ की चीजें हैं इसमें। ओके, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू नो इफ यू वांट टू क्रिएट अ करियर, सीसीएनए द फर्स्ट स्टेप आप बोल सकते हैं। सीसीएनए फर्स्ट स्टेप बोल सकते हैं, कि जहां पर आपको नेटवर्क के बारे में, इंफ्रा के बारे में पूरी की पूरी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। ओके, सो नाउ वी ऑलरेडी डिस्कस सीसीएनए क्या है। एंड सो जैसा मैंने बताया आपको कि फ्रेशर्स, ग्रेजुएट्स, आईटी, नॉन आईटी, जिसको भी टेक इंडस्ट्री में, इंफ्रा में आना है स्पेशली, आपको नॉलेज है या नहीं है, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस। पीपल थिंक कि यार, मतलब ये आपको अगर आईटी में जाना है तो ये सारे कोर्स हैं, करेंगे तो क्या होगा। ऑलराइट, सो ये सारी चीजें आपको
you have to make sure that CCNA is the first thing which you'll be learning here. और क्या क्या जॉब आपको मिलता है उसके बारे में हम बात करेंगे, विल टॉक अबाउट दैट. सो आप फ्रेशर्स हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आईटी से हैं, नॉन आईटी से हैं, आपको टेक टेक इंडस्ट्री में जाना है और इंफ्रा में जाना है. एंड इनिशियली डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यूज कैसा जाता है, आपको नॉलेज कितना है. स्लोली स्लोली आप इसमें बढ़ते हैं. मैं अपने केसेस में, अपनी लाइफ में केसेस में आपको बताऊं, इफ आई टेल यू माई एक्सपीरियंस, आई हैव सीन पीपल हु स्टार्टेड वर्किंग विद 1,500 रुपीज सैलरी. मैं 15-16 साल पहले, 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने सीसीएनए और इस तरह के जो कोर्सेज थे साइबर सिक्योरिटी, 1,500 से 2,000 रुपए सैलरी में काम किया. लेकिन विद इन 2-3 years दे रीच 25,000, 35,000, एंड टुडे दे आर अर्निंग सैलरी अराउंड 12 to 20 लाख पर एनम. एंड सम आर यहाँ पे है इंडिया में, कोई आउट ऑफ इंडिया भी है. तो ये आप सर्च भी कर सकते हैं खुद से. ऐसा नहीं है कि हम आपको बोल रहे हैं या बता रहे हैं इसलिए आप उसको मान लें. आप खुद सर्च कर सकते हैं. you'll find many people. आप लिंक्डइन में जाके देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों ने सीसीएनए और कोर्सेज करके कैसे लोगों की टेक इंडस्ट्री में दे हैव चेंज द लाइफ. ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ जॉब you'll get, we'll talk about that now. एंड ये एक रफ आइडिया है. इंडिया में आपको सैलरी इनिशियली एज अ फ्रेशर, जब आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है, इवन 6-7 महीने का एक्सपीरियंस, तो भी इनिशियली यू गेट अराउंड 20,000 to 30,000 पर मंथ. एंड डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट सैलरी का लेवल है. सो अगेन ये आप इसको एक बेंचमार्क नहीं कर सकते कि नहीं इतना ही मिनिमम होगा, इतना मैक्सिमम होगा. ये आप पर डिपेंड करता है. टोटली डिपेंड्स ऑन यू दैट व्हाट काइंड ऑफ स्किल यू आर हैविंग. सो जब इफ यूर सीसीएनए, व्हाट काइंड ऑफ जॉब टाइटल्स यू विल बी हैविंग, किस तरह का जॉब. एक जॉब टाइटल की जब हम बात करते हैं कि एज अ सीसीएनए आपका जॉब टाइटल क्या होगा, तो जॉब टाइटल में यूजुअली अगर आप लिंक्डइन पर जाएंगे या नौकरी या कोई भी पोर्टल ढूंढते हैं जहां पर आपको जॉब ढूंढना है, तो इट विल ऑलवेज बी एडवर्टाइज एट नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर. जो फर्स्ट लेवल का जॉब होता है आपका, नेटवर्क सपोर्ट इंजीनियर आएगा. उसके बाद आपको नेटवर्क टेक्नीशियन आता है, एनओसी इंजीनियर आता है, जूनियर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आता है. ये सारे आपको जॉब प्रोफाइल्स दिखेंगे. ओके, और जैसा मैंने बताया सैलरी रेंज आपका इनिशियली 4 to 7 लाख होता है. जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एंड प्लस आप इसके बाद में सीसीएनए के साथ में आप वहाँ पे स्टॉप नहीं होते हैं, आप आगे बढ़ते हैं. सीसीएनपी है, क्लाउड है और सिक्योरिटी है. इन चीजों को जब आप करते हैं साथ में, तो 2-3 साल में भी आप पर एनम 10 लाख तक लोग लेने वाले हैं. मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूँ. सीसीएनए के साथ में आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपका क्लाउड फंडामेंटल्स है जो कि AWS या अजोर ये चीजें हैं. और ये बहुत इंटरेस्टिंग है. आप जब देखेंगे तो अब आपकी जो डेली लाइफ में, फॉर एग्जांपल आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आप अपना कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आप वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, सारी चीजें बैक एंड पर टोटली आप एक नेटवर्क इंजीनियर के, नेटवर्क सपोर्ट के या क्लाउड इंजीनियर के या लिनक्स या विंडोज इंजीनियर के बिना नहीं हो सकती है. जब आपको देखेंगे तब आपको अच्छी तरह पता चलेगा कि आपकी जॉब प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है. और ये सारी चीजें आपको इट विल बी हियर. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द अब्रॉड, सो वंस यू गेट गो टू द अब्रॉड, अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, आपको अच्छी जॉब भी मिल सकती है. बट अगेन लाइक वो डिफरेंट चीज है. उसमें वीजा रिक्वायरमेंट, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. और उसके बाद उनकी वांट होनी चाहिए, और तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन देयर. बट अगर मैं सिर्फ इंडिया की बात करूं, उसमें भी आपको अच्छी स्टार्ट मिल सकती है इनिशियली. अगर आपके पास में अच्छा, लेट्स से आप यू आर नॉट अ ग्रेजुएट ऑल्सो, टू बी वेरी फ्रैंक, या आपका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, या आपने बीटेक बीई नहीं किया हुआ है, आपने इवन बीए किया है, बीकॉम किया है, देन आपको इनिशियली थोड़ी सी मुश्किल होगी. बट आपके स्किल पर है, आपके नॉलेज पर है, आप शॉर्टली उसको ओवरकम कर सकते हैं. और आई हैव सीन मेनी पीपल, उन्होंने बीए किया, इवन 12th फेल है, 12th पास है कई लोग, दे आर नॉट ग्रेजुएट, बट अच्छी पोजीशन पर है और अच्छी सैलरी ले रहे हैं, और अपने नेटवर्क इंफ्रा में दे आर ऑन द हाई लेवल. सो बाद में उन्होंने काफी ग्रेजुएशन कर लिया है बिकॉज ऑफ सम, क्योंकि सब बड़ी कंपनियों में जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उसमें रिक्वायरमेंट होती है आपको ग्रेजुएट होना चाहिए. तो दे डू द ग्रेजुएशन इवन आफ्टर ज्वाइनिंग द कंपनी, जो करस्पॉन्डेंस वगैरह से. सो इफ यू वांट टू अगर आपको सब सारे के सारे क्राउड में से अगर एक स्टैंड आउट करना है, तो ऑब्वियसली आपको सीसीएनए,
CCNP क्लाउड प्लस सिक्योरिटी, ये कॉम्बिनेशन है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा एज ए इंफ्रा, राइट? नाउ it is also known as CCN is also known as the first door. It is opening the first door, right? सो यहाँ पर आपको सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं करना है कि आपने 40 घंटे का कोर्स कर लिया, आपने एग्जाम दे दी, पास हो गए, नहीं। आपको ज्यादा में ज्यादा प्रैक्टिस करना है, आपको ज्यादा में ज्यादा रिसोर्सेज जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे उनको पढ़ना है, उनसे आपके ग्रुप में बात करना है, और चीजों को आपको ठीक से रियल लाइफ सिनेरियोस पर बात करनी है कि कैसे रियल लाइफ में उसको रिफ्लेक्ट करना है। कि अगर जैसे मैं अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं मैंने आपके सामने ये जो प्रेजेंटेशन खोला है, ये CCNA का पार्ट है, इसको OSI मॉडल अगर आपको पता हो उसका पार्ट है। तो ये जो आप देख रहे हैं वो आपको समझना है कि ओके ये OSI लेयर का पार्ट है, फिजिकल लेयर का पार्ट है। तो ये जो कुछ हो रहा है इसके पीछे, दिस इज द प्रोसेस, वो चीजें आपको और भी मतलब आपका जो स्किल है उसको मजबूत करेंगी, एंड इट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू। ऑलराइट, सो अगर आप नेक्स्ट जेन IT कोर्स NGIC की बात करें तो यहाँ पर आपको CCNA इट्स डिजाइन टू हेल्प द स्टूडेंट्स, और लैंग्वेज आप वी यूज इंग्लिश, सो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग क्लास लेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली लैंग्वेज शुड नॉट बी बैरियर। लैंग्वेज से ऑब्वियसली लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, बट आपको चीजें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। सो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप जो कोर्स करेंगे वो आपको आपकी लैंग्वेज में, ताकि आपको चीजें समझ आए। बट ऑब्वियसली जो आपको कमांड्स हैं या जो कंसेप्ट है वो इंग्लिश में होगा, एग्जाम भी आपकी इंग्लिश में होगी, बट वो ऐसा नहीं होता कि एकदम आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो कुछ आपको कोई लिटरेचर वाली इंग्लिश नहीं है, वो काफी जो कॉमन इंग्लिश होती है उस पर होता है, और बहुत इजी होता है अगर आपको आपने सही से प्रैक्टिस की है, और अगर आपने क्लास में ध्यान दिया है, और जो नोट्स जो वीडियोस आपको दिए हैं आपने उनको करेक्टली गो थ्रू किया है, तो एग्जाम इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ऑल्दो इसके डिमांड बहुत है और पीपल फेल ऑल्सो, लॉट ऑफ पीपल, बट टेक माई वर्ड्स इट्स नॉट इम्पॉसिबल। आप आराम से बहुत आसानी से इसको पास कर सकते हैं। इस कोर्स में जो क्लास होगी अपनी ऑनलाइन होगी, और 6 मंथ की टोटल ड्यूरेशन है, और ऑनलाइन क्लासेस है। सर्टिफिकेशन आपको ये प्रिपरेशन होगा जो कि 301, इसमें दो पेपर्स होते हैं, 401 410 जो आपको करते हैं। और आपको जो क्लास रिकॉर्डिंग होगी जो, उसको आप हमेशा यूज कर सकते हैं। और आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मॉक इंटरव्यूज होगा, ताकि आप वेन एवर यू गो फॉर इंटरव्यू यू ऑलरेडी नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, राइट? और जॉब असिस्टेंस भी है आपको, प्लेसमेंट असिस्टेंस भी है, जो आपको अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग इंडस्ट्री में जहां पर ओपनिंग्स होगी, यू विल बी सेंड देयर टू गेट द जॉब इंटरव्यू। और जॉब इंटरव्यू का भी सपोर्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं जॉब में, किस काइंड का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको सारा प्रिपरेशन यहाँ से होगा, राइट? ये इसका कोर्स करिकुलम है, टोटल मॉड्यूल्स आपके। तो जैसा मैंने आपको बताया, फर्स्ट मॉड्यूल है फंडामेंटल ऑफ नेटवर्किंग, जिसमें आप मॉडल्स OSI TCP/IP मॉडल, ये थ्योरी होती है इसके अंदर, जो कि इसमें थोड़ा सा आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ता है थ्योरी पढ़ने के लिए। बाद में ये सारे मॉड्यूल्स हैं, ये सारे के सारे आपको टोटल बहुत इंटरेस्टिंग है। आप रियल लाइफ में जो काम कर रहे हैं, आप जो मोबाइल यूज कर रहे हैं, जो मैंने बताया, आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, आपका टैब यूज कर रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, एवरीथिंग आपका OTT प्लेटफॉर्म है, एवरीथिंग सबके पीछे ये है, ये सारे के सारे मॉड्यूल। ये एक बैकबोन है जिसको बोल सकते हैं। तो ये अगर आप कर लेते हैं तो आपको खुद समझ आएगा कि आप व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग। योर सिक्योरिटी आप कर रहे हैं, आप उसको सिक्योर कर रहे हैं नेटवर्क को, आप उसको, आप अगर देखेंगे कि अगर एक चीज इसमें कम हो गई तो आपके सारे के सारे नेटवर्क्स बंद हो जाएंगे, आप मोबाइल बंद हो जाएगा, तो वो इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी इसमें। तो ये 6 मॉड्यूल्स हैं टोटल, और एवरीथिंग विल बी ऑन द लैब्स। आप ज्यादा में ज्यादा हैंड्स ऑन होगा, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। आप शुरुआत में एक बार गलती करेंगे, 2 बार गलती करेंगे, 10 बार गलती करेंगे, आफ्टर सम टाइम्स आपको रात को 2 बजे नींद में से उठाकर पूछेंगे, आप बता देंगे, क्योंकि इतना आपने गलती कर चुके होंगे, इतने मिस्टेक्स कर दिए होंगे, कि आपको अच्छी तरह पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या है, और इसको किस तरह से मुझे सॉल्व करना है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, टेक माई वर्ड्स, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो टाइमिंग्स 9:30 मंडे टू फ्राइडे होगा। और ये जैसे 1-to-1 मेंटरशिप है, तो हमारी क्लास लिमिटेड होती है, और इसमें आपको आपका आपका रिज्यूमे लिंक्डइन में ऑप्टिमाइजेशन होगा, प्लेसमेंट असिस्टेंस होगा,
एंड ईएमआई ऑप्शंस है, और आपको टोटल मैक्सिमम प्रैक्टिकल्स मिलेगा। और जो रियल टाइम नेटवर्क डायग्राम्स, यानी जो कंपनीज में, इंडस्ट्री में जो नेटवर्क होता कैसे है, वो डायग्राम्स आपको समझाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, उसको देखना कैसे, उसको चेक कैसे करना है। और जॉब इंटरव्यूज आपके सिमुलेशन होंगे, ताकि आप प्रिपेयर हों जॉब के लिए। और जब आप जॉब पे जाए तो आपको कॉन्फिडेंस हो, जैसा मैंने आपको बताया कि 98% आपको चीजें यहाँ से ही पता चल जाएंगी कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि हमें एज ए इंडस्ट्री पर्सन वी नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन एग्जैक्टली, और वो एक्सपेक्ट क्या करते हैं आपसे, वो आपसे आंसर क्या एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आप उनको सही से आंसर दे रहे हैं उनको जो चाहिए, और किस तरह से आपके जो स्ट्रांग पॉइंट है उस पर उनको लाकर आपको इंटरव्यू देना है, वो सारी चीजें, सारी टेक्निक हम लोग यहाँ पर आपको हेल्प करेंगे। साथ ही आपको लिंक्डइन प्रोफाइल, आज आपको अगर जॉब मार्केट में रहना है इंडस्ट्री में, तो आपके लिंक्डइन प्रोफाइल स्ट्रांग होनी चाहिए आपके लिंक्डइन में, क्योंकि कोई भी कंपनी आपका लिंक्डइन प्रोफाइल जरूर देखेगी। अगर वो स्ट्रांग है तो आपके कंपेयर टू द अदर पीपल यू गेट मोर चांसेस। नाउ वो ऑप्टिमाइजेशन आपको कराएंगे, यानी कि उसको बेहतर आपके लिंक्डइन प्रोफाइल को, रिज्यूमे को और अच्छा यहाँ से एनजीआईसी करेगा। ओके, सो ये आपको डिफरेंट लेवल है, जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि कॉम्बोज है। आप इसको सीसीएनए प्लस लिनक्स प्लस एडब्ल्यूएस, जो आपको साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड का ऑप्शन देगा। या आपको नेटवर्क, इसमें लेवल्स होते हैं, L2 L1 L3। L1 जो होता है स्टार्ट में आपका फर्स्ट लेवल होता है, L2 सेकंड लेवल, L3 हाईएस्ट लेवल होता है। इसके बाद आपको एसएमई बनना पड़ता है, यानी एसएमई बनते हैं आप जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है, जो कि हाईएस्ट लेवल है, आप समझ सकते हैं कि आपके फील्ड में। तो ये कॉम्बो है, इसमें आपको एक फायरवॉल जो भी सिक्योरिटी के लिए है, क्लाउड, AWS अमेजोन का क्लाउड है, और सिस्को। तो सिस्को आप देखेंगे, आपको सीसीएनए, आपको हर जगह इट रिक्वायर OSPF BGP MPLS, ये भी आपके ट्रबल शूटिंग, ये भी नेटवर्किंग का ही है, बट एडवांस नेटवर्किंग है। तो ये नेटवर्क इंजीनियर्स, ये आपका नेटवर्क सिक्योरिटी एंड क्लाउड इंजीनियर, ये साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड। बट सीसीएनए इज बेसिक, ये फर्स्ट स्टेप है आपका, ये पहली सीढ़ी है आपके करियर के लिए। राइट, सो नाउ दिस इज व्हाट it's just a demo this thing, and if you got any question, आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, प्लीज आस्क। यस, किसी, एनीवन हैज गॉट एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी? हेलो, हेलो, एम ऑडिबल? Hello guys, if you have any query, any doubt, this is the right time to ask. सी, फर्स्ट थिंग मैं आपको बताऊं, एक वेरी सिंपल थिंग। आप कहीं भी जाते हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं या कहीं भी, जो पहले बोलता है वो लोगों की नजर में आता है। जो पहले क्वेश्चन पूछता है या जो शुरुआत करता है किसी भी चीज की कम्युनिकेशन में, तो अगर आप जॉब के लिए भी जा रहे हैं, वो वो आप अपना एक क्राउड से हटकर आप अपनी एक पहचान बनाते हैं। स्टार्ट कौन करता है? सो ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन। आपको लग सकता है कि क्वेश्चन में आपको थोड़ा हेजिटेशन हो सकता है कि लोग क्या कहेंगे, आपको ये नहीं सोचना है लोग क्या कहेंगे, आपके मन में जो क्वेश्चन आएगा यू शुड आस्क। कोई भी क्वेश्चन सिली क्वेश्चन नहीं होता है। आप क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं है। तो आई विल अप्रिशिएट, मैं आपको इंकरेज करूंगा, आप कोई भी क्वेश्चन पूछें रिलेटेड द वट एवर हम लोग ने जो भी बातें की इसके बारे में। एनीवन? अतिन पांडे, दलवीर सिंह, कानन, मनीष, मोहम्मद इशाक, मुर्तुजा, राहुल, रविशंकर, साम्या, स्नेहल, सुधाकर, वरुण, वेंकटेश, have any question please ask. हेलो। Yeah, please ask. गुड इवनिंग सर। Good evening, सर Dalveer. एक्चुअली मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जैसे 9:30 बजे से अगर हमारा बैच स्टार्ट होता है पर डे, तो Yeah. इन केस अगर हम शिफ्ट वाइज वर्क करते हैं ना सर कंपनी में, तो हम इस चीज़ जी, को कैसे मैनेज करेंगे?
एक्चुअली हमारे ये जो Yeah. सेशन है ये लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस है, तो आपको फ्लेक्सिबल लर्निंग का अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लाइव क्लासेस अटेंड करते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे। और उसके अलावा हमारे कुछ वीकली Q&A सेशंस भी होंगे ट्रेनर के साथ, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं लाइव क्वेश्चंस के लिए। ओके, तो ये अपनी क्लासेस मंडे टू सैटरडे रहती होगी, राइट? नहीं, मंडे टू फ्राइडे रहती हैं। बाकी जो भी बैच की डिटेल मंडे टू होगी फ्राइडे। वो आपको जो हमारे काउंसलर्स है वो सारा कुछ एक्सप्लेन कर देंगे कॉल पे। ओके। ओके मैम, What is the थैंक total यू। cost of the course, ma'am? ये कोर्स के लिए तो सारी डिटेल्स के लिए कल आपको काउंसलर्स एक बार कॉल करके सारी डिटेल्स बता देंगे कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहता है। अभी के लिए अगर आपके पास कुछ CCNA से रिलेटेड या कुछ सब्जेक्ट बेसिस पे क्वेश्चंस हैं तो आप वो सर से पूछ सकते हैं, हमारी फैकल्टी से। So जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, I'll just share my screen. सी, आप जॉब अपॉर्चुनिटी CCNA डालेंगे तो यू कैन सी किस तरह की जॉब्स ये है आपको। यू कैन सी सिर्फ मुंबई में ही आपको CCNA जॉब्स, अगर मैं यहाँ देखता हूँ, ये L2 लेवल है, एज यू कैन सी 2 लाख to 7 लाख पर एनम, राइट। यानी लेवल 2, ये आपको तकरीबन 2 से 3 साल के बाद आप इस लेवल पे पहुंचते हैं। यू कैन सी एक्टिव है, 21 डेज पहले आया है। और दिस इज द कंपनी जो न्यू मुंबई में, इंस्पिरस IT सर्विस। और ये जो हमने बातें की है वही चीजें देख लीजिए आप। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इश्यूज, टेक्निकल सपोर्ट कंसल्टेंट, यू कैन सी अप टू 22 लाख पर एनम। या कोई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इस तरह के आपको नाम अलग अलग है, बट आपको ये सारे CCNA टेक्निकल सपोर्ट, So एसोसिएट sorry to interrupt. इंजीनियर्स। Can I have a या doubt? Actually, from the last 1 year, I'm searching या about the वेंकटेश प्लीज आप। cybersecurity and networking field of CCNA, and I have searched all ओके the jobs in the Indeed and LinkedIn. They all require for the experience, sir. ओके, It doesn't in करेक्ट। सो there is सी, no. Hmm. yeah, it's a good question. As I told you, that when you start your career, initially, see, there are two things. If you're already BTech or B in student, right? So usually what happen, you get the campus selection, correct? So in the campus Yeah. selection, they will take you, they will give the training, and they will give the job initially itself with a good salary. And usually it's around 4 lakh, 5 lakh per annum initially, right? But if, let's say, for example, you have the knowledge and but you don't have a starting. So what happened that initially you should start with a very low profile. You might start with a smaller company. Like for example, if I talk about this company, Inspiros IT Service Private Limited, it's not a very big company. It's not kind of your HP or HCL kind of company, right? So, but here, or very small company, maybe 10 or 15 employees, right? So that kind of company will give you less salary, but you get experience. You get experience in 5 to 6 months, 7 months also, 8 months also. Once you get the real field experience, then to be very frank, it's not we can say official, but the thing is that people, you can simply see how you go to the interview. Let's say, for example, I have worked in a company for 1 year, but in 1 year I have learned uh, about something about 4 or 5 years, right? So I can go and I can claim that I have experience of 4 years, 5 years. So how I'm going to prove? There are two things. Your whatever they ask in the interview, right? So that level of answers you can simply give the answer to them, right? So those things are there. So it's obviously, if you say I'm very fresher, people will not give you the, let's say, for example, here, if I talk about Cisco fresher, and this is for the graduate, and Cisco fresher job, and company Cisco 4+ here, right? The Cisco.com, Cisco itself. So you have to get the experience. People think, okay, until unless I get a good salary of 6 lakh or 7 lakh per annum, I won't go.
you should not wait for this. Any opportunity like for NetTech, this company, it's a very small company, right? It's not a very big company, but as you can see, this is giving you per month 20 to 30,000, but they need maybe, maybe 6 or 5 month experience. This is in Mumbai. So if you talk about near city where you're living, if you're in North India, so Gurgaon or Faridabad or Noida, you'll find many jobs there. Okay. And if you're in South India, so usually in Bangalore and Hyderabad, you'll find these things. So you need a very small company if you're not a BTech or campus hired person. So you can easily, get a very small uh, this thing. And then once you get the proper experience, let me tell about myself. I haven't told. See, when I started my career, I finished my graduation as a BSc in Mumbai, Andheri, right? And I joined one course in an institute at that time. I'm talking about 98. Okay, in 1998. In 98, I joined one computer course. It was for 6 to 8 months, I think, 8 months. I finished, and I joined a very small company as a network engineer for 6 months. In 6 months, I started working with carrying the laptop, carrying the desktop, and traveling in Mumbai local train and going to the offices, installing that. There I learned a lot of things on the very basic level. Then I got an opportunity as a trainer where there was a one. I just saw a newspaper advertisement. They needed some trainer who can teach the courses at that time, which was for Cisco only and Microsoft. So I just applied because I thought I was having that experience. Uh, because in institute also I've taken some batches. So I went and I got the opportunity. My salary was 2,500 rupees in 99. Then slowly, after jumping with many companies, getting more experience. In 2004, 2005, I went to Singapore as a trainer. And 2007, I was in London. 2010, I came back to UAE, and then 2000. Yeah. So it's like you can start from zero, and then आप अपनी जर्नी और आगे कर सकते हैं। या तो आपके पास में आप ऑलरेडी बीटेक हैं, बीई है, तो वहां से आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर ऐसा नहीं है तो भी आप कर सकते हैं इन चीजों को। ये आप पर डिपेंड कर, इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर स्किल। और आप कितना यूजुअली क्या होता है, लोग फर्स्ट स्टेज में ही फर्स्ट स्टेप पे ही हिम्मत हार जाते हैं कि इतनी कम सैलरी, मैंने तो इतने बड़े बड़े चीजें हैं कि लोग 30,000, 40,000, 80,000, लाख रुपए सैलरी पा रहे हैं, मिल रहा है, और हमको तो यहाँ पर 10,000 मिल रहा है, 15,000 मिल रहा है। तो वो आपको नहीं देखना। आपको एक्सपीरियंस एक बार मिल गया तो आप स्विच कर सकते हैं इजीली। ये दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई कैन टेल यू। एनी मोर क्वेश्चन, एनी फर्दर क्वेश्चन? सर, मुझे एक क्वेरी थी, क्योंकि सीसीएनए में रियल राउटर और रियल स्विच पर या कनन, टास्क परफॉर्म करना होता है, तो ऑनलाइन कैसे कंडक्ट होगा, और ऑनलाइन अच्छी तरह से परफॉर्म करने यस, के लिए आएगा क्या, ये मुझे पूछना था। ठीक। हाँ, गुड क्वेश्चन स्नेहल। सो क्योंकि हाँ, सिस्को वेरी गुड क्वेश्चन। सिस्को सो जैसे मैंने आपको सॉरी बताया, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होता है। सो जो आपने राउटर स्विचेस देखे होंगे, तो उनके पास में कोई स्क्रीन नहीं होता है, ठीक है। आप अगर राउटर स्विच देखेंगे, तो अगर आप बैंक में भी जाएंगे या बड़े बड़े किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे, आप देखेंगे राउटर स्विचेस होते हैं, बट वो उनके पास में कोई स्क्रीन नहीं होता जहां पर आप उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, उसको कंसोल से कनेक्ट करते हैं। वो कंसोल से आप उस पे उसको कमांड्स देते हैं। गॉट माई पॉइंट? तो वो उसके पास जो कंसोल होता है, वो कंसोल सिमुलेशन या तो आप अपने मॉनिटर पे लगाते हैं, या सिमुलेशन हम लोगों के पास जो, तो वो सिमुलेशन जब हम आपको दिखाएंगे, वो रियल राउटर पे जो आप काम करेंगे, बिल्कुल वैसा ही होता है। तो वो कोई डिफरेंस नहीं होता, इट इज सेम एज द रियल राउटर या रियल स्विच पे आप काम कर, सारे कमांड्स और सब कुछ। हाँ, आपको फिजिकल राउटर एंड स्विचेस भी दिखाया जाएगा ऑनलाइन। तो वो आपको जैसे मैं दिखाता हूँ, वेट, लेट मी शो यू। अगर आप राउटर देखेंगे, तो ये आपके राउटर होते हैं इस तरह के। सो आप देखिए, 3954, ये आपके राउटर्स $870।
तो ये सिस्को राउटर्स है। राउटर ये इस तरह होता है, इसमें आपको देखेंगे पीछे इंटरफेसेस है जो कनेक्टेड होते हैं, बट इसमें आप कहीं भी देखो, आपको कहीं भी ये नहीं दिखेगा कि आपको कोई स्क्रीन है जो कॉन्फ़िगर करना है आपको, राइट। सो आप इसको यूज कैसे करते हो, हाउ यू यूज इट, ये राउटर को आपको यूज कॉन्फ़िगर करना है, स्विचेस को कॉन्फ़िगर करना है। सो हाउ यू गोइंग टू यूज इट, सो आप ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे आपको दिखाऊं GNS3। ये आपको, ये GNS3 है ग्राफिकल। आपको पहले तो ये आप देखेंगे इस तरह आपका नेटवर्क आप बना सकते हैं खुद का। एक छोटा सा यूट्यूब वीडियो आप देख लीजिए, ये खुद का एक आप नेटवर्क नेटवर्क बनाते हैं। और जो रियल राउटर, ये आपको एक विजुअल डायग्राम बनता है, उसके बाद आप जो एक्चुअल राउटर में जब एंट्री करते हैं तो ये बिल्कुल इसी तरह का इंटरफेस आपको दिखता है। यू गेट द सेम इंटरफेस लाइक दिस, गॉट इट। और ये जो आपको सारी चीजें दिख रही है, रियल राउटर पे आप काम करते हैं बिल्कुल वही चीज होती है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, इट्स एग्जैक्टली सेम। और ये सब कमांड्स आप देते हैं, और देन यू अंडरस्टैंड आपका जो रियल राउटर है वो इसको रिस्पॉन्ड कैसे करता है। आपका नेटवर्क डायग्राम, इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपको इंडस्ट्री के नेटवर्क डायग्राम्स दिखाए जाएंगे, वो किस तरह। तो ये आपके दो नेटवर्क, दो राउटर हैं जो इनका सिंबल है, और इसको आप कनेक्ट कर रहे हैं और इसको आप यूज कर रहे हैं, तो ये आपको अ, एक रियल टाइप का नेटवर्क दिखाई पड़ता है। एनी मोर क्वेश्चन? यस। So Dalveer and Venkatesh and Snehal asked some questions. So is it the same question for everyone? सबको यही डाउट है, कुछ और डाउट है किसी को स्पेसिफिकली? हेलो। तो सर एक प्रोसीजर कैसे रहता है कि आप जैसे आपने बताया था कि कोर्स में आप गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए, नेक्स्ट कौन सा कोर्स होना चाहिए और क्या पाथवे लोगों को, तो वो आप कैसे गाइड करते राइट। हैं लोगों को, जॉब्स वगैरह सारा कुछ कैसे पाथवे चूज सी अब इसमें कैसे होता है, जैसे हमारे पास में आपने 3 कॉम्बो दिए हुए हैं, राइट ठीक राइट है। अब इसमें आपने तीन कॉम्बो दिए हुए हैं, ठीक है। एक CCNA तो फर्स्ट बेसिक है, जैसा मैंने आपने आपने दिखाया, हमने बताया उसमें। उसके बाद में खुद जो स्टूडेंट है वो डिसाइड करता है कि उसे सिक्योरिटी में जाना है कि प्योर नेटवर्किंग में जाना है। अगर सिक्योरिटी प्लस क्लाउड में जाना है तो हम सजेस्ट करते हैं AWS प्लस लिनक्स का जो कॉम्बो है, फायरवॉल है, वो कॉम्बो है। या फिर आप सारी चीजें कर सकते हैं, CCNA ट्रबल शूटिंग में जा सकते हैं। तो डिपेंड, क्योंकि हर कोई एक लेवल पे नहीं सोचता है, सबको डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होता है। किसी को सिक्योरिटी में बहुत इंटरेस्ट है तो हम उसको लिनक्स और AWS का विद द क्लाउड, काली लिनक्स वगैरह क्लाउड के साथ में कराते हैं, तो वो काफी एडवांटेज करता है। सी और ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। आपको जो CCNA में जो नॉलेज मिलेगा, CCA सीखोगे, वो आपको, और ये जो चीजें स्टैटिक है, यानी ये मैंने 26 साल पहले सीखी थी, आज तक जो कंसेप्ट है वो चेंज नहीं हुआ है। और मुझसे 40 साल पहले से चीजें चल रही है, यानी कि जब से नेटवर्किंग बना है। अच्छा, नेटवर्किंग शुरू कैसे हुआ, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। नेटवर्किंग की जो शुरुआत हुई है वो शुरू हुई है USA और रशिया के वर्ल्ड वॉर का, जो कोल्ड वर्ल्ड वॉर था, उसकी वजह से नेटवर्किंग शुरू हुई है। तो वो हिस्ट्री है काफी। इवन सिस्को की शुरुआत कैसे, लॉट ऑफ स्टोरीज, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज आर देयर। सो आप जब नेटवर्किंग का जो कंसेप्ट है वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। वो आज आप पढ़ रहे हैं, जिसने 60 साल पहले पढ़ा है वो भी सेम कंसेप्ट है, और जो मैं आज आप पढ़ेंगे वो 40 साल बाद भी सेम कंसेप्ट होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। कंसेप्ट आपका सेम रहेगा। हाँ, उसमें कुछ न्यू चीज ऐड होगी जो आपको समझना है, बट एक बार आपका कंसेप्ट समझ आ गया आपको, तो सिर्फ आपको चीजें उस पर बिल्ड करनी है। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि मुझे आई हैव टू गो टू द आइदर सिक्योरिटी, द क्लाउड। लेकिन वो कंसेप्ट आपको क्लाउड में भी लगेगा, वो कंसेप्ट आपको सिक्योरिटी में भी लगेगा, वो आपको इंफ्रा में भी लगेगा। ओके।
सो अगेन वो इंटरेस्ट के ऊपर होता है आपके, एज अ मेंटर, एज अ ट्रेनर, वी अंडरस्टैंड कि ये इस पार्टिसिपेंट को, इस स्टूडेंट को इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वी सजेस्ट देम। और वो फिर जब हम कोर्स करते हैं, जब इंटरेक्ट करते हैं, तो धीरे धीरे हमें खुद पता चलता है कि किस में ज्यादा इंटरेस्ट है और कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। राइट सर, राइट। साइबर सिक्योरिटी में जाना है, दोनों चीजें शुरुआत आपको सीसीएनए से ही करनी होंगी। ओके, आप फिर उसके बाद में आप अगर साइबर सिक्योरिटी में जाना है तो ऑब्वियसली आपको लिनक्स, काले लिनक्स सीखना होगा। फिर उसके बाद में आपको क्लाउड फंडामेंटल्स, क्योंकि अब क्लाउड सिक्योरिटी भी इंपॉर्टेंट चीज हो गई है, तो वो सारी चीजें आपको कंबाइन करें। इवन आपको नेटवर्क सिक्योरिटी में जाना है तो ऑब्वियसली आपको फायरवॉल, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, क्लाउड है, ये सारी चीजें आपको कंबो होती है। बट अगेन आपका इंटरेस्ट किस में है, वो जब आप खुद मतलब जब आप जैसे जैसे आगे कोर्स करेंगे आपको खुद पता चलेगा मेरा इंटरेस्ट ज्यादा किस में है। एंड राइट सर। आगे बढ़ने का मतलब कैसा है कि वो अभी 6 महीने में अगर उनको जैसे आपने 20 या 22 हज़ार रुपए बताया पर मंथ का, तो वो अगर चाहें तो विद इन नेक्स्ट ईयर में ही कैन रीच अराउंड 50,000 वेरी इजीली। एक साल में इतना एक्सपीरियंस। देखिए क्या होता है कि आप एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप एक डॉक्टर हैं, फॉर एग्जांपल आप एक फ्रेशर डॉक्टर हैं, फ्रेश डॉक्टर एमबीबीएस है, आपने क्लिनिक खोली। ओके, आप और एक कोई डॉक्टर है आप ही के एरिया में 20 ईयर्स एक्सपीरियंस है उसको, वो जो काम कर रहा है। बट अगर आपके पास में जो पेशेंट्स आते हैं वो विद इन 6-7 मंथ्स में आप इतना अच्छा उनको सर्विस दे रहे हैं और इतनी अच्छी तरह ट्रीट कर रहे हैं कि जो 20 ईयर से कर रहा है वो उसे मतलब वो उतना असर नहीं कर रहा है जितना आप, क्योंकि आपने पढ़ाई लेटेस्ट की हुई है पहली चीज तो, आपको एक्सपीरियंस फ्रेश है, और आपको खुद को भी एक ये है कि मुझे आगे बढ़ना है। तो आप उस लेवल पे जाके काम करेंगे और पूरे जोश से करेंगे, तो हो सकता है जो 20 ईयर वाला एक्सपीरियंस उससे ज्यादा अच्छी करें और लोग आपके पास ज्यादा आएंगे। ये डिपेंड करता है आपके खुद के स्किल पर। आप सी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई प्रमोशन आपको रैंक वाइज होने वाली है कि नहीं, आप एक एक स्टेप बढ़ोगे, नहीं। आई हैव सीन द पीपल, वो जंप उन्होंने किया 3-4 स्टेप आगे किया हुआ है विद इन 1 to 2 ईयर्स। वो टोटली आपके स्किल पर और आपके इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। राइट राइट। ओके, सो एनी मोर क्वेश्चंस वी हैविंग? Okay, sir. So I think we don't have any more questions, so we can conclude this session. All right. Yeah, thank you So so much. thank you very much. Thank you so much, everyone, for your time. And I hope that you understood the session, and hope to see you soon. Guys, thank you very much. Right. Yeah, so guys, I hope you had a good informative time. And अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए हमारे कोर्सेज, हमारे ऑफरिंग्स के बारे में, you can always reach out to us at our WhatsApp number. अभी शेयर किया है हमने चैट में सारी डिटेल्स। और प्लीज हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड लिंक्डइन पे भी फॉलो कर सकते हैं टू स्टे कनेक्टेड। So thank you everyone and Okay. So night. thanks a lot. Thank you very much. Thank you. Thank you so much.